Let's continue our topic chemical equilibrium. मैं मेरे लास्ट लेक्चर में केमिकल इक्विलिब्रियम करा रहा था और मैंने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन को डेल्टा जी से रिलेट करते हुए थर्मोकेमिस्ट्री में जहां तक हमने फिनिश करा था उसको फर्दर केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ कंटिन्यू भी करवा दिया था। मैं अब सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम के आगे के कंसेप्ट समझाता हूं। सबसे पहले, फॉर सच टाइप ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, हियर A moles of A reacting with B moles of B and it's giving you C moles of C and D moles of D. यह कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है and this reversible reaction exists at some dynamic equilibrium condition. Some dynamic equilibrium condition is established. At dynamic equilibrium condition, इस रिएक्शन की हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं and that equilibrium constant is defined in this manner: active mass of C to the power C into active mass of D to the power D upon active mass of A to the power A into active mass of B to the power B. We define equilibrium constant in this manner. Now, as I told you, if it is a gas phase reaction, if it is a homogeneous gas phase reaction, for a gas phase reaction. Now what do you mean by gas phase reaction? Gas phase reaction means in which at least one of the reactant or product must be in gas phase, जिसमें कम से कम एक रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट गैस फेज में हो. इन दैट केस दैट वुड बी टर्म्ड एज अ गैस फेज रिएक्शन. यदि सारे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैस फेज में हो, इन दैट केस दैट वुड बी कॉल्ड अ होमोजेनस गैस फेज रिएक्शन. यदि वहां गैस के साथ लिक्विड हो या गैस के साथ सॉलिड हो या गैस लिक्विड सॉलिड सभी हो, तो वह हेट्रोजेनस गैस फेज रिएक्शन कहलाती है. Now, for such gas phase reaction, we always know that the active mass may be written either in terms of concentration or in terms of partial pressure. For any reactant and product, active mass may be called directly proportional to concentration or it may be called directly proportional to partial pressure. Now, if in this expression, if active mass are substituted in terms of concentration, यदि हमने इस एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन के टर्म्स में एक्टिव मास सब्स्टिट्यूट करे, we will write the equation like this: concentration of C to the power C into concentration of D to the power D upon concentration of A to the power A, concentration of B to the power B. If we write all the active masses in terms of concentration, in that case, this equilibrium constant would be denoted as Kc. We put an underscript C here. इस equilibrium constant K के आगे एक underscript C लिख दिया जाता. This underscript C simply means that while applying the definition, while applying the expression and the value of Kc, all the active masses must be substituted in terms of concentration. ये जो C लिखा हुआ है इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि इस डेफिनेशन को अप्लाई करते समय, Kc वैल्यू को एक्सप्रेस करते समय सारे एक्टिव मासेस को कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखना होगा. इसी तरह से यदि हमने एक्टिव मासेस को पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखा, ये सभी गैसेस है, ए भी गैस है,
B is also a gas, C is also a gas and D is also a gas. यदि हमने इन सभी A, B, C और D के लिए एक्टिव मासेस को पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखा, we'll write it like this: partial pressure of C to the power C, partial pressure of D to the power D upon partial pressure of A to the power A, partial pressure of B to the power B. If all the active masses are substituted in terms of partial pressure like this, in that case, this equilibrium constant K is kept with an underscript P, Kp. We write it Kp. This Kp denotes that all the active masses must be substituted in terms of partial pressure. यह Kp का मतलब होता है. अब देखिए, ये जो Kc है, यह भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसी रिएक्शन के लिए है. जो Kp है, यह भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसी रिएक्शन के लिए. बोथ आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइंड फॉर द सेम रिवर्सिबल रिएक्शन एट द सेम डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन. एक ही रिएक्शन के लिए उसी डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर Kc लिखते समय हमने इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन में कंसंट्रेशंस को सब्स्टिट्यूट कराए और Kp लिखते समय हमने पार्शियल प्रेशर्स को सब्स्टिट्यूट कराए. वी नो दैट कंसंट्रेशंस आर रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर्स आर रिलेटेड टू कंसंट्रेशन. इफ दे बोथ आर रिलेटेड, हेंस द वैल्यू ऑफ Kc एंड Kp मस्ट ऑल्सो बी रिलेटेड टू ईच अदर. इन दैट केस यह Kc और Kp की वैल्यू में भी एक रिलेशनशिप अवश्य होना चाहिए, क्योंकि एक ही रिएक्शन के लिए और एक ही डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए. लेट्स राइट दैट Kp Kc रिलेशनशिप. हम उसको डिराइव करते हैं. देखिए, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट A, फॉर A आई कैन ऑलवेज राइट दिस इक्वेशन. सिंस A इज अ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ A into total volume is equal to moles of A into RT. I can always write gas equation for this A. अब इधर से मैं लिख दूंगा partial pressure of A is equal to moles of A upon total volume into RT. मैं यह लिख दूंगा moles of A upon total volume. Moles of A upon total volume would be concentration of A. Partial pressure of A, concentration is moles upon volume, would be equal to concentration of A into RT. हम इस तरह से लिखेंगे. A का पार्शियल प्रेशर और A का कंसंट्रेशन, इसे हमने रिलेट कर दिया. A is a gas. It exists at dynamic equilibrium condition. डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट को एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनमें A भी है. A के वहां पर Na मोल्स एग्जिस्ट करते हैं. टोटल वॉल्यूम वहां पर भी है. मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल वॉल्यूम वुड बी कंसंट्रेशन ऑफ A. कंसंट्रेशन ऑफ A इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A इन दिस मैनर. इन द सिमिलर फैशन, आई कैन ऑलवेज राइट अ रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ B एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, partial pressure of C and concentration of C, partial pressure of D and concentration of D. In this manner, partial pressure of B would be equal to concentration of B into RT, partial pressure of C would be equal to concentration of C into RT, partial pressure of D would be equal to concentration of D into RT. In this case, one can always relate partial pressures and concentrations. Now, after relating partial pressures and concentration, now what I do is, I substitute all this values of partial pressure into this Kp equation. मैं इन सभी partial pressure की values को इस Kp equation में substitute करता हूं in this manner. This Kp is equal to partial pressure of C to the power C. Partial pressure of C to the power C की जगह लिखूंगा concentration of C into RT to the power C. Concentration of D into RT to the power D upon
concentration of A into RT to the power A, concentration of B into RT to the power B. हम इस तरह से इस Kp के एक्सप्रेशन में सारे पार्शियल प्रेशर्स की वैल्यूज को हमारे इस इक्वेशन के द्वारा अप्लाई कर दिए हैं. नाउ Kp इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C to the power C into concentration of D to the power D upon concentration of A to the power A into concentration of B to the power B into RT to the power C plus D minus A plus B. I write it like this. Now observe. We used to say C plus D minus A plus B. C and D, they are the coefficient of product. A and B, they are the coefficient of reactant. C plus D minus A plus B. This is denoted by delta N. This is denoted by delta N, and this is difference in the coefficients of reaction. This is difference in the coefficient. Stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficient भी कहते हैं हम इनको. And C to the power C into concentration of D to the power D upon concentration of A to the power A upon concentration of B to the power B. This is equilibrium constant Kc. Kp is equal to Kc into RT to the power delta N. I can always write this relationship between Kp and Kc. Now this relationship would be written if we have got homogeneous gas phase reaction. यदि हमारे पास इस तरह की homogeneous gas phase reaction होती तो डेफिनेटली हम Kp और Kc को इस तरह से रिलेट कर देते. बट यदि यह रिएक्शन होमोजेनस नहीं होती, यदि यह रिएक्शन हेट्रोजेनस होती, हेट्रोजेनस रिएक्शन मतलब इसमें सारे गैस नहीं होते, गैस फेज के अलावा कोई और फिजिकल स्टेट भी होता, लेट अस से वहां पर सी लिक्विड फेज में. नाउ दिस हैड बिकम अ हेट्रोजेनस गैस फेज रिएक्शन. हेट्रोजेनस इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज टू फिजिकल स्टेट्स आर एग्जिस्टिंग देयर एट डायनामिक इक्विलिब्रियम. डायनामिक इक्विलिब्रियम पर दो फिजिकल स्टेट वहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं. लिक्विड स्टेट भी एग्जिस्ट कर रहा है और गैसियस स्टेट भी एग्जिस्ट कर रहा है. कौस्तभ कॉन्स्टेंटली आप बातचीत कर रहे हो, ऐसा क्या बात है भाई? बातचीत बिल्कुल मत करो प्लीज. ना वहां पर गैस फेज के साथ में लिक्विड फेज भी एग्जिस्ट कर रहा है. दैट्स व्हाई हम इसको हेट्रोजेनस गैस फेज रिएक्शन कहेंगे. अब हेट्रोजेनस गैस फेज इसलिए क्योंकि वहां पर गैस है. यदि वहां पर सी लिक्विड हो जाए, इन दैट केस हमारे इस पूरे एनालिसिस में कहां कहां क्या क्या फर्क आएगा? क्या इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन में फर्क आएगा? हम कहेंगे इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं आना. यह तो ऐसा ही रहेगा, एक्टिव मास ऑफ सी टू पावर सी टू एक्टिव मास ऑफ डी टू पावर डी अपॉन ए टू पावर ए बी टू पावर बी. डिफरेंस किस जगह पर आएगा? हेट्रोजेनस गैस फेज इक्विलिब्रियम में सी का जो एक्टिव मास लिखा जाएगा दैट वुड बी कांस्टेंट एंड दैट वुड बी इक्वल टू 1. हम गैसेस के एक्टिव मास को कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिख देंगे या फिर गैसेस के एक्टिव मास को पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिख देंगे, मगर इस हेट्रोजेनस गैस फेज रिएक्शन में सी
which is a liquid, its active mass would be written equal to 1. अब C जो कि एक लिक्विड है, C के लिए हम यह इक्वेशन नहीं लिखेंगे. This is a gas equation and it's written only for the gases. हम यह इक्वेशन नहीं लिखेंगे. और अब हम इस जगह पर भी इसको यह टर्म अपीयर नहीं होगी. इस जगह पर भी यह टर्म अपीयर नहीं होगी. यह पावर में C अपीयर नहीं होएगा. और अब हम डेल्टा N लिखने के बजाय गैस के कोएफिशिएंट को इग्नोर कर देंगे और गैस के कोएफिशिएंट को इग्नोर करके अब हम डिफरेंस इन कोएफिशिएंट जब निकालेंगे तो D माइनस A प्लस B. हम डिफरेंस इन कोएफिशिएंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं. इसको अब हम डेल्टा Ng लिख देते हैं. और डेल्टा Ng लिखने के बाद अब इसे हम कहते हैं डिफरेंस इन द कोएफिशिएंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. इसे अब हम कहते हैं डिफरेंस इन कोएफिशिएंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. एंड फाइनली वी राइट Kp Kc रिलेशनशिप एज Kp is equal to Kc into RT to the power delta Ng. Finally, I relate Kp and Kc in this manner. Equilibrium constant Kp for any reaction would be equal to equilibrium constant Kc into RT to the power delta Ng. And what is delta Ng? Delta Ng is the difference in coefficient of gas molecules. This is relationship between Kp and Kc. Once again, what must be unit of Kp and Kc? What would be unit of Kc and Kp? हम Kc की यूनिट लिखने के लिए इस जगह पर कॉन्सेंट्रेशन जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम इधर लिखेंगे मोल्स पर लीटर टू द पावर C. यदि 1 है तो उसको इग्नोर कर देंगे. मोल्स पर लीटर टू द पावर D अपॉन मोल्स पर लीटर टू द पावर A moles per liter to the power B. So this would be moles per liter to the power D minus A plus B. The unit of Kc would be always moles per liter to the power delta Ng or molarity to the power delta Ng. This would be the unit of Kc. Similarly, किसी भी रिएक्शन के लिए Kp की यूनिट क्या होगी? Kp लिखते समय once again एटमॉस्फेयर टू द पावर D अपॉन एटमॉस्फेयर टू द पावर A into atmosphere to the power B. I will write all the partial pressures in atmospheres and finally this unit would be D minus A plus B like this. So the unit of Kp would be always atmosphere to the power delta Ng or torque to the power delta Ng. This would be the unit of Kp and Kc. This Kp and Kc, these terms are introduced only for a gas phase reaction. यदि कोई गैस फेज रिएक्शन होगी तभी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc टर्म इंट्रोड्यूस करोगे, तभी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp टर्म को इंट्रोड्यूस करोगे.
यह केसी और केपी टर्म तभी इंट्रोड्यूस करी जाएगी और इनको इस तरह से डिफाइन करा जाएगा, इस तरह से रिलेट करा जाएगा, एंड दिस वुड बी द यूनिट ऑफ केसी एंड केपी। इसी समय इस चीज को लिखो। नाउ माय नेक्स्ट आर्टिकल रिगार्डिंग केमिकल इक्विलिब्रियम वुड बी ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। नोट इट डाउन। The next concept regarding reversible reaction and chemical equilibrium, it's the concept of Le Chatelier's principle. देखिए, the principle is quite simple, its understanding is also quite simple, and its application is also quite simple. But you will come across complicated problems over this principle. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस प्रिंसिपल पर जब अप्लाई करने के लिए आते हैं तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, उनमें अच्छा खासा कैलकुलेशन होता है। ऑल्दो प्रिंसिपल को समझना और अप्लाई करना कोई कठिन बात नहीं। देखिए, जैसे हमने फिजिक्स में एक प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया समझ रखा है। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया? द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया इज एनी बॉडी, एनी सिस्टम would oppose any change that is brought into it. This is inherent property of any system. कोई सा भी सिस्टम है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर किसी भी तरह का परिवर्तन को अपोज करता है। वो चाहता है कि वो जैसा है, जिस तरह से वैसा का वैसा ही रहे, उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आए। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। ये फिजिक्स में हमने समझा हुआ है। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल बिल्कुल वैसा ही है। इट्स इनर्शिया ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल एक्चुअली किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कंडीशन पर एक इनर्शिया है। We used to say any reaction at its dynamic equilibrium condition would always oppose any change that is brought into it. कोई सी भी केमिकल रिएक्शन जो ऑलरेडी डायनामिक इक्विलिब्रियम पर एस्टैब्लिश्ड है, वह रिएक्शन अपने अंदर किसी भी तरह के परिवर्तन को, किसी भी तरह के चेंज को अपोज करेगी। This is the basic Le Chatelier's principle. It says that, मैं स्टेटमेंट बोलता हूं, if any alteration is made at the dynamic equilibrium condition of a reversible reaction, the reaction would occur in the direction so as to nullify the effect of change. मैं लिखता हूं, if any alteration is made, if any alteration is made at dynamic equilibrium condition, if any alteration is made at dynamic equilibrium condition of a reversible reaction, equilibrium condition of a reversible reaction, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का यदि डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है और उस एस्टैब्लिश्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आपने किसी भी तरह का ऑल्टरेशन करा है, किसी भी तरह का चेंज करा है, then reaction would occur in the direction so as to nullify the effect of that change. Then reaction would occur in
in the direction so as to nullify the effect of the change. यदि एस्टैब्लिश्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है, उस पर आप किसी भी तरह का ऑल्टरेशन करते तो रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में जाएगी जिससे कि जो भी कुछ इफेक्ट हुआ है आपके चेंज करने का, उसके इफेक्ट को नलीफाई करा जा सके, उसको खत्म करा जा सके। जैसे मैं इसी समय कुछ चेंज बताता हूं और उनके जो इफेक्ट होंगे वह समझाता हूं। द फर्स्ट चेंज दैट यू may bring is in the dynamic equilibrium condition is you may add some reactant, addition of reactant, addition of reactant. We used to say इक्विलिब्रियम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है और उस एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम में न तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है, न रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है। ऑल्दो रिएक्शन दोनों ही डायरेक्शन में चल रही है और जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है उतनी ही बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। सिंस द रेट ऑफ रिएक्शन ऑकरिंग इन बोथ द डायरेक्शन इज इक्वल, हेंस द रिएक्शन अपीयर्स टू बी स्टैग्नेंट। वहां पर वह रिएक्शन बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हो ही नहीं रही। ऐसी कंडीशन में आपने वहां पर कुछ रिएक्टेंट डाल दिया। जब आपने ऐसी कंडीशन में कुछ रिएक्टेंट डाल दिया, देन एडिशन ऑफ रिएक्टेंट वुड इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के डाल देने से वहां रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो रिएक्शन यह कोशिश करेगी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को दोबारा कम कर दिया जाए। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को दोबारा कम करने के लिए वह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश करेगी और इस तरह से वहां पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली थोड़ा बढ़ेगा। एडिशन ऑफ रिएक्टेंट वुड फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन, would favor, it would favor forward reaction or it would cause forward reaction. रिएक्टेंट के डालने से वह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। While addition of product, एडिशन ऑफ प्रोडक्ट, इसके डालने से क्या होगा? वंस अगेन इफ वी ऐड द प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वुड इंक्रीज एंड इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस देन द रिएक्शन विल हैव टेंडेंसी टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन बढ़ा है उसको दोबारा कम करने की टेंडेंसी रखेगा और दोबारा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन को कम करने के लिए वह रिएक्शन फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगी। बैकवर्ड डायरेक्शन में जब रिएक्शन होगी तो वहां पर प्रोडक्ट कंज्यूम हो जाएंगे और प्रोडक्ट के कंज्यूम हो जाने से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। एडिशन ऑफ प्रोडक्ट वुड फेवर बैकवर्ड रिएक्शन, दिस वुड फेवर बैकवर्ड रिएक्शन। वहां पर प्रोडक्ट के डालने से बैकवर्ड रिएक्शन होने लगेगी। इसी तरह से यदि मैं कहता रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट? यदि डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है और एस्टैब्लिश्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम पर यदि आप रिएक्टेंट को रिमूव करते हो, यदि वहां से आप रिएक्टेंट को हटाते हो, तो रिएक्टेंट को हटाने से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को कम करने से रिएक्शन चाहेगी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दोबारा बढ़ जाए और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दोबारा बढ़ाने के लिए
वह रिएक्शन वंस अगेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगी। इधर मैं लिखता हूं रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट, removal of reactant would also favor backward reaction. It would favor backward reaction, क्योंकि रिएक्टेंट को आपने रिमूव कर दिया है, वहां पर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कम करा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दोबारा बढ़ाना है और दोबारा बढ़ाने के लिए बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होगी। इसी तरह से रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, इफ एट डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन वन रिमूव्स द प्रोडक्ट, एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट, कोई एक भी प्रोडक्ट रिमूव करा जाए, सारे प्रोडक्ट रिमूव करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक भी प्रोडक्ट रिमूव करोगे तो उस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दोबारा बढ़ाने की टेंडेंसी होगी रिएक्शन की, और उस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दोबारा बढ़ाने के लिए once again forward reaction would occur. It would favor forward reaction. In the similar manner as we are removing reactant, this is the effect of changing concentration of any reactant or any product. किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज करने पर रिएक्शन इस तरह से होगी। नाउ द फिफ्थ ऑल्टरेशन दैट वी मे डू इन द रिएक्शन इज इफ वी ऐड कैटालिस्ट इनटू द रिएक्शन एट एस्टैब्लिश्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। इफ वी ऐड कैटालिस्ट एट डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, यदि हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर कैटालिस्ट को ऐड करते हैं तो उससे क्या होगा? हम कहते हैं एट एस्टैब्लिश्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन एडिशन ऑफ कैटालिस्ट हैव गॉट नो इफेक्ट, इट फेवर नाइदर फॉरवर्ड रिएक्शन नॉर बैकवर्ड रिएक्शन। उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैटालिस्ट के ऐड करने से। नो इफेक्ट, दैट इज नाइदर फॉरवर्ड रिएक्शन नॉर बैकवर्ड रिएक्शन, नाइदर फॉरवर्ड नॉर बैकवर्ड रिएक्शन वुड ऑकर। देखिए कैटालिस्ट हमेशा यदि इफेक्ट करता है तो इनिशियल कंडीशन पर जब इक्विलिब्रियम नहीं है वहां पर कैटालिस्ट का असर दिखता है। और कैटालिस्ट का क्या असर दिखता है? कैटालिस्ट सिर्फ एक ही काम करता है, वो इक्विलिब्रियम को जल्दी एस्टैब्लिश करने में, इक्विलिब्रियम कंडीशन को जल्दी अचीव करने में मदद करता है। कैटालिस्ट कभी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कंडीशन पर कोई असर नहीं डालता है। कैटालिस्ट का इफेक्ट क्या होता है इस बात को मैं ग्राफिकली समझाता हूं। मैंने इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कैसे होता है इसके लिए ग्राफ बताया था, उसी ग्राफ के द्वारा मैं कैटालिस्ट का इफेक्ट भी इसी समय डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। देखिए हमने यह कहा था इफ वी प्लॉट फॉर रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम हुई और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ी और अल्टीमेटली दोनों बराबर हो गए। इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यह रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है और यह रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। एंड दिस इज द सिचुएशन विदाउट कैटालिस्ट। यह किसी टाइम T1 पर हुआ। नाउ दिस इज विदाउट कैटालिस्ट, विदाउट कैटालिस्ट।
Now what catalyst is? Catalyst makes the reaction fast. वह फॉरवर्ड रिएक्शन को भी फास्ट कर देता है, वह बैकवर्ड रिएक्शन को भी फास्ट कर देता है, और वह यह जो डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टैब्लिश हुआ है, जिसको एस्टैब्लिश होने में कुछ t1 टाइम लगा है। अब देखिए कैटालिस्ट के साथ क्या होगा। विथ कैटालिस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से कम होगी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तेजी से बढ़ेगी, और यह जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जो इसके पहले हमें किसी t1 टाइम में मिल रहा है, वही इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें कैटालिस्ट के साथ काफी जल्दी इसी जगह पर मिल गया। दिस इज t2 टाइम एंड दिस इज विथ कैटालिस्ट, दिस इज विदाउट कैटालिस्ट। ऑल्दो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उस पर कोई फर्क नहीं आया। फाइनली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इधर भी इक्वल हुई, और फाइनली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इधर भी इक्वल हुई, और जो इक्वल वैल्यू इधर थी वही इक्वल वैल्यू इधर भी बनी। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर कोई फर्क नहीं आया। बस कैटालिस्ट के डालने से क्या हुआ कि जो इक्विलिब्रियम को अचीव होने में 8, 10 या 15 घंटे लग सकते थे, उसी इक्विलिब्रियम को अचीव करने में 10 या 15 मिनट ही लगे, और बड़ी जल्दी वह इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। कैटालिस्ट ऑलवेज हेल्प इन अचीविंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन सून। Catalyst brings the equilibrium condition soon. It does not change the equilibrium condition. It have got no effect at equilibrium condition. यदि equilibrium condition already established है और उस condition पर आपने कोई catalyst डाला है, तो उसका कोई असर नहीं होगा, न तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और न ही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ऑल्दो अभी यह सारी बातें सिर्फ मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूं, मैं इनको फर्दर बड़े डिटेल में आगे के लेक्चर्स में समझाऊंगा। पहले हम ली चैटलियस प्रिंसिपल के सारे ऑल्टरेशंस और उनके इफेक्ट को पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, फिर हम बड़े डिटेल में एक एक रिएक्शन के लिए